Hi, welcome to my channel Study System. I am Kulwinder, ready with the topic tense. I have already uploaded 3 videos, preface of tense, which are the basic of this video. If you have not watched that, then watch it right now. Let's start tense. First, see what do we mean by tense? What is tense? So, definition of the tense is time of an action to be done is called tense. Means कि एक्शन का जो टाइम है वो टेंस कहलाता है. एक्शन कब हुआ, कब होगा और एक्शन हो रहा है, ये सारी चीजें हमें टेंस बताता है. इसलिए ही हम टेंसेस में डिफरेंट टाइप की वर्ब फॉर्म्स लगाते हैं, क्योंकि टेंस जो है वो फॉर्म्स के वर्ब की फॉर्म्स के ऊपर डिपेंड करता है. नेक्स्ट हम देखेंगे मेन काइंड्स ऑफ टेंस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. जो टेंसेस की मेन काइंड्स है वो 3 है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. प्रेजेंट मीन्स वो टाइम जो अभी गोइंग ऑन है, एंड पास्ट मीन्स वो टाइम विच इज पास्ट आउट, जो बीत गया है, एंड द फ्यूचर इज द टाइम विच इज कमिंग अप. फ्यूचर मीन्स वो टाइम जो अभी टाइम आना है. नेक्स्ट सब काइंड्स ऑफ टेंस. जितने ये 3 काइंड्स दिए गए हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, इनकी आगे 4 काइंड्स हैं, तो टोटल मिलकर हमारे पास 12 सब काइंड्स हो जाती है. नंबर 1 पे प्रेजेंट टेंस की सब काइंड्स देखेंगे. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, एंड नाउ नेक्स्ट पास्ट टेंस. पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट continuous tense, and next future tense. Future indefinite tense, future continuous tense, future perfect tense, and future perfect continuous tense. These are the 12 sub kinds of tense. We are going to learn one by one. जब हम ये 12 kinds करेंगे तो 12 kinds की आगे और 3 टाइप्स आएगी, सिंपल, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव. तो हमारे पास टोटल जो है वो 36 टाइप के सेंटेंसेस हो जाते हैं, जिनमें डिफरेंट रूल्स लगने होते हैं. डिफरेंट रूल्स, 36 टाइप के डिफरेंट रूल को लर्न करना डिफिकल्ट होता है एक साथ में. अगर हम इनको 1 by 1 करें तो 1 by 1 सीखें तो हमारे लिए बहुत ईजी रहता है. सो वी आर गोइंग टू do the first type, present indefinite tense. First kind is present indefinite tense. First we will see the rules of simple sentences. Simple sentences are called affirmative, assertive and positive sentences also, because we don't use not here, and we also don't ask any question here. After simple sentences, we will see the negative and interrogative sentences respectively. But first start with simple sentences. Simple sentences में कौन सा रूल लग गया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में s या es ऐड करेंगे. Whether our subject is singular like he, she, it, then we will use first form of verb and add s or es with it. Whether our subject is plural and we, you, they, then we will use first form of verb. If our subject is special, that is I, then we will use first form of verb. Let's see the uses of present indefinite tense. कि present indefinite tense हम कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं. नंबर 1, जनरल एक्शन डन इन ongoing टाइम. जो अभी टाइम चल रहा है, अगर उसमें कोई काम होता है तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं. नेक्स्ट, रेगुलर एक्टिविटीज, हैबिट्स, यूनिवर्सल ट्रूथ, एंड फॉर स्टेटमेंट दैट आर ऑलवेज ट्रू, एंड ऑल्सो टू इंट्रोड्यूस द कोटेशंस वी यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. लेट्स सी वन बाय वन. फर्स्ट, एक्शंस डन इन ongoing time. For example, I write a story, he writes a story, we write short stories, they write stories. Let's observe the same looking sentences. First we will see I write a story. I is a singular subject, of course,
but we are using here the form which is used with the plural form. For example, I is a special subject, so we use first form of verb here. And he writes a story, he is a singular subject, so we are adding s with the first form of verb like writes. And the next sentence is we write short stories, and we subject is plural, so we are using only first form of verb with it. They write stories, they is also plural subject, so we are using only first form of verb here. See more examples. My father works in a office. My father is a singular subject, so we are using work first form of verb and adding s with it. Mr. Suresh Sharma teaches us English. Mr. Suresh Sharma is also a singular subject, so we are using again teaches. और रेगुलर एक्टिविटीज़ है ये उनकी, कि ये रेगुलर लाइफ में ये एक्टिविटीज़ वो डेली करते हैं. नेक्स्ट आर हैबिट्स. आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. नेहा गोज टू वॉक डेली एट 5 o'clock. आई ब्रश माई टीथ. ही टेक्स बाथ डेली. दीज आर द हैबिट्स. जो भी हमारी हैबिट्स होती है वो उनको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही शो करते हैं. आई जो है, आई सब्जेक्ट है, उसके साथ हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई है, और नेहा के साथ हमने फर्स्ट फॉर्म एंड सिंगुलर है तो ईएस यूज़ किया है. आई के साथ फिर से ब्रश, एंड ही के साथ टेक्स लगा है तो उसके साथ फिर से हमने एस ऐड की है. और ये सभी सेंटेंसेस जो ये शो करते हैं कि ये उनके हैबिट्स है. मॉर्निंग वॉक पे जाना और मॉर्निंग जल्दी उठना. नेक्स्ट टीथ ब्रश करना, टेक बाथ, ये हमारे डेली, इनको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही राइट कर सकते हैं. नेक्स्ट है यूनिवर्सल ट्रुथ्स. यूनिवर्सल ट्रुथ को हम पास्ट टेंस में नहीं लिख सकते. पास्ट टेंस में यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए हम पास्ट टेंस नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि तो फिर इसकी मीनिंग जो है वो रॉन्ग हो जाती है. हम इनको ओनली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही शो कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, सनराइजेज इन द ईस्ट. अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. स्टार्स ट्विंकल एट नाइट. होल वर्ल्ड में सन जो है वो ईस्ट की ओर से आता दिखाई देता है हमें, और जो अर्थ है वो सन की ओर घूमती है. एंड स्टार्स जो है सभी को एट नाइट ही दिखाई देते हैं. मीन्स ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, इनको ये कभी चेंज नहीं होती, तो इनको हम ओनली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही राइट करेंगे. नेक्स्ट ट्रू स्टेटमेंट्स. जो कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी होती हैं जो ट्रू होती हैं, मीन्स अगर हम उसमें टेंस का चेंज कर दें तो वो रॉन्ग हो जाएंगी. फॉर एग्जांपल, 2 and 2 make 4. दो और दो 4 होते हैं. अगर हमने यहाँ पे मेक जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की है, अगर हम इसको मेड कर दें, सेकेंड फॉर्म में चेंज कर दें, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस बन जाएगा, बट इसका जो मीनिंग है वो रॉन्ग हो जाएगा. 2 और 2 4 होते थे, नहीं, 4 पहले ही नहीं होते थे, अब भी होते हैं, तो हमें इसका मीनिंग जो है वो चेंज नहीं करना है. डॉग्स बार्क, वर्ड्स चर्प. डॉग्स जो है वो बार्क करते हैं एंड वर्ड चर्प करते हैं, ये ऑलवेज ट्रू रहता है. नेक्स्ट आर द कोटेशंस. कोटेशंस को जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो उनको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में शो करते हैं. फॉर एग्जांपल, नोटिस सेज नो पार्किंग. नोटिस क्या कह रहा है कि यहाँ पे पार्किंग नहीं करना. किड्स सेज अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर. ऑफकोर्स किड के साथ ऐसे लगा है, ये जॉन किड्स नेम है, राइटर का नेम है, तो जॉन किड ने बहुत टाइम पहले कुछ कहा था, बट वो अभी भी है बुक्स में, वो अभी भी है, वो अभी भी ट्रू है. तो हम ऐसी कोटेशंस को हम प्रेजेंट टेंस में ही शो करेंगे. अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर. नेक्स्ट आर द नेगेटिव सेंटेंसेस. जैसे कि अभी अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंसेस को देखा, तो इसमें हमने जहाँ पे हमारा सब्जेक्ट प्लूरल था वहाँ पे हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की है, और जहाँ पे सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस एंड ई एस ऐड किया है. आगे हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस.
नेगेटिव सेंटेंसेस की यूजेस हम कहाँ पे करेंगे, जहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो एग्री नहीं है एक्शन के साथ, और जहाँ वहाँ पे जैसे हमने नो करना हो कि मैं ये नहीं करता, मुझे ये नहीं पसंद, ठीक है। तो जहाँ पे हमने नो शो करना है तो हम नेगेटिव सेंटेंसेस यूज़ करते हैं। बट इसका जो रूल है वो डिफरेंट है। इसका रूल जो है, जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो नेगेटिव सेंटेंसेस है ये सबसे डिफ़िकल्ट है और सबसे अलग हैं, तो इनको अच्छे से करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लगेगा डू नॉट और डजंट एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम डजंट लगाएंगे, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम डू नॉट यूज करेंगे, और आई के साथ डू नॉट लगता है। आई डोंट राइट अ स्टोरी, मैं स्टोरी नहीं लिखता। शी डजंट राइट अ स्टोरी। वी डोंट प्ले, दे डोंट वर्क हार्ड। Ram and Shyam do not like fast food. Let's see the examples. I is a singular subject but special, so we are using do not. I के साथ भी हमने यहाँ पे do not ही use करना है। She singular subject, we are using does not. We plural subject, we are using do not. They is also plural, so we are using do not. Ram and Shyam are two persons, so we are using and this subject is a plural actually, so we are using do not. And first form of verb is must with do and does. Next are the interrogative sentences. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, जहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछने हो प्रेजेंट टेंस में। तो इसके जो रूल्स हैं वो थोड़े मिलते जुलते हैं इनके साथ। जैसे नेगेटिव में डू डज यूज़ करते थे, वही हम इंटेरोगेटिव में भी डू डज यूज़ करेंगे, और डू डज जो है उसका यूज़ हम बिगनिंग में करेंगे, सेंटेंस के बिगनिंग में करेंगे, और साथ में सब्जेक्ट लगाकर फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और नेक्स्ट हम रेस्ट ऑफ सेंटेंस ऐड कर देंगे, और लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन लगाना नहीं भूलना, क्योंकि यहाँ से मार्क्स डिडक्ट होते हैं अगर हम साइन ऑफ इंटेरोगेशन नहीं लगाते। लेट्स सी द एग्जांपल्स। डू आई राइट ए स्टोरी? डज शी राइट ए स्टोरी? डू वी प्ले इन द प्लेग्राउंड? डू यू लव योर मदरलैंड? डज ही सिंग ए सॉन्ग? लेट्स सी डू आई राइट ए स्टोरी। डू हमने फर्स्ट यूज कर लिया क्योंकि सब्जेक्ट आई है, और देन सब्जेक्ट, after that first form of verb, and then rest of sentence, and we are adding sign of interrogation at the last of the sentence. And next, she does write a story. does लगाए यूज किया हमने because she singular subject है, and write is the first form of verb. Next, do we play in the playground? We use do because we is a plural subject. And then, do you love your motherland? You is also a singular subject, so we are using do. And does he sing songs? He is a singular, so we are using does, and first form of verb is singular. That's all for the sentence for the present indefinite tense.